Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? वालेकुम सलाम सर अल्हम्दुलिल्लाह। MashaAllah, I hope सब लोग ठीक होंगे. And very good morning to everyone and welcome to our first online class. So मुझे बताइए मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes, sir. Okay. यस सर। Okay, so if my voice is clear and loud and Yes, clear, let's sir. start. In last class, we discussed the benefits of research. Why should we learn the research? Research has various benefits. Research creates critical thinking in you. Research creates various professional skills in you, communication skills, and other soft skills. Research also benefit you if you want to write a research project at the end of your BS program. This course will help you to start your research project and complete it timely. And if you want to do any literary work, तो ये सब्जेक्ट जो है ये आपकी हेल्प करेगा. और इसके अलावा we studied the definition of research in our last class. What is research? Research, as you know, is a scientific investigation to reach at the solution of a problem. बिजनेस के किसी प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन देना होता है बाय फाइंडिंग एन इन्वेस्टिगेशन, by applying an investigation. And third thing which we studied in the last class was the difference between basic research and applied research. Basic research, if you want to expand your own knowledge, if you want to increase your knowledge, if you want to acquire more insights, more understanding of a topic, अगर आप असाइनमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह के काम अगर आप कर रहे हैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए या एक ऐसा कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो कहीं अप्लाई नहीं होना, तो दैट मीन्स यू आर कंडक्टिंग a basic research, a pure research. Second is the applied research. In applied research, you basically focus on a management or business problem. You try to solve it, and by following various scientific steps, आप उस problem का solution देते हैं. So this was the recap of our last class. Today we are going to discuss the first ingredient of the research process. Today we are going to start the research journey, and research journey starts from choosing a research topic and developing your research proposal. The first and the foremost step in the research process is to look for a research topic. Every researcher needs to have a research topic. So let's discuss how can we choose a research topic, and then how can we develop research proposal. These are the learning outcomes which inshallah we will try to achieve after learning this topic. Formulating and clarifying your research topic. Many students think that choosing their research topic is basically most exciting part. Research basically create an excitement.
For example, at the end of your degree program, you need to complete a research project, a research report. So that must be an exciting part, to look for a topic, the topic which will help you to complete your degree program. That is an excitement part. So रिसर्च स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वट यू वॉन्ट टू डू। आप क्या करना चाहते हैं? तो आप ये अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, किस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं, टू इन्वॉल्व यू इन अ सिंगल मोमेंट ऑफ इंस्पायरेशन। जब आप अपने टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपको एक खास मोमेंट पे ये इकट्ठे करने की कोशिश करता है जिस एरिया पे आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। रिसर्च विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड विल प्रोबेबली टेक यू अप ब्लाइंड एलेज। रिसर्च आपका काफ़ी सारा टाइम भी लेगी। पूरा एक सेमेस्टर दिया जाता है आपको रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट एक सेमेस्टर से ज़्यादा भी लगाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च एरिया जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि इट विल इन्वॉल्व एन इंटेंस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट विल एनहांस योर एक्टिव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक है, तो ये फायदा भी रिसर्च आपको देगी। हाँ, रिफ्लेक्सिविटी इसमें बहुत चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग क्रिटिकली ऑन द सेल्फ एज ए रिसर्चर। रिसर्च में आपको अपने आप पे फोकस करने का, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जानने का बहुत मौका मिलता है। ठीक है, और जब आप रिफ्लेक्सिविटी से काम करते हैं तो आप काफ़ी सारी हिडन चीज़ों को जान रहे होते हैं। सो रिफ्लेक्सिविटी इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग क्रिटिकली ऑन द सेल्फ। सो यू नीड टू डीप डाइव इनटू योरसेल्फ to dig out many hidden things, to explore many hidden things in you। और उनको जब आप सरफेस पे लाते हैं तो आपको बड़ी नई चीजें पता चलती हैं। ठीक है, अब जो भी रिसर्च टॉपिक आप लोगों ने चूज करना है, इसके लिए हमारी बुक ने 3 करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बयान की हैं। देयर आर 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च टॉपिक which is considered an excellent topic. The first one is the appropriateness. Your research must have first attribute which is called appropriateness. Second attribute is capability. Third attribute is fulfillment. So these are the 3 characteristics and attributes which your topic must have. For example, कैसे पता चलेगा कि हमारी रिसर्च में अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके जवाब आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने जो भी रिसर्च टॉपिक चूज किया है, डज इट फिट द स्पेसिफिकेशंस एंड मीट स्टैंडर्ड्स सेट बाय द एग्जामिनिंग इंस्टीट्यूशन। आपके डिपार्टमेंट जो आपको सेट ऑफ रूल देगा, अगर आपका टॉपिक उन रूल के मुताबिक है, इट मींस इट इज एन अप्रोप्रिएट टॉपिक। ठीक है, अगर आपका टॉपिक कोई इशू जो जिस पे वो रिसर्च कर रहा है, अगर वो किसी थ्योरी के साथ लिंक करता है तो इट इज एन अप्रोप्रिएट टॉपिक, राइट? इफ योर टॉपिक is related to research questions and objectives, research questions और objectives clearly define करता है, तो that means that is an appropriate topic. If your topic gives new fresh insights, को पुरानी old understanding ही नहीं बढ़ाता बल्कि नई understanding लाने की कोशिश करता है, तो that means that is an appropriate topic. Are the findings for this research topic likely to be symmetrical? क्या आपके जो फाइंडिंग्स हैं, आपके टॉपिक ने जो फाइंडिंग्स लेके आनी है, उससे रिलेटेड फाइंडिंग्स वो सिमेट्रिकल हैं, लेवल्स पे हैं, एक जैसी हैं, सिमिलर वैल्यूज की रखती हैं, जैसे कि आपका आउटकम है वैसे ही आपका टॉपिक भी, वैसे ही आपकी फाइंडिंग्स भी। अगर ये हर चीज़ सिमेट्रिकल है तो इट मीन्स योर टॉपिक इज अप्रोप्रिएट।
Capability means capability. Do you have or can develop within the project time frame? आपको एक टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम में आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. आर यू कैपेबल टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट विद इन टाइम? ठीक है, अगर ऐसी बात है, इफ आंसर इज ओके, तो आपका टॉपिक ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं. आप टाइम फ्रेम, नेसेसरी स्किल्स, इसी तरह इज रिसर्च टॉपिक अचीवेबल विद इन द अवेलेबल टाइम? विद इन अवेलेबल टाइम जो है, एक सेमेस्टर का टाइम दिया जाता है, उसी में कंप्लीट करना है. ठीक है. इज द रिसर्च टॉपिक अचीवेबल विद इन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस? अगर बजट इन्वॉल्व है, आपको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है रिसर्च करने के लिए, तो क्या वो रिसर्च टॉपिक ऐसा है कि इसी बजट में हो सकता है? ठीक है. आर यू रीजनेबली सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू गेन एक्सेस टू द डाटा यू आर लाइकली टू एक्वायर फॉर दिस रिसर्च टॉपिक? टॉपिक के लिए जो डाटा रिक्वायर है, इज इट अवेलेबल? अगर तो वो अवेलेबल है, उस तक आपकी एक्सेस है, तो आप का जो टॉपिक है, इट हैज कैपेबिलिटी टू बी कंप्लीटेड. फुलफिलमेंट, डज द रिसर्च टॉपिक रियली इंटरेस्ट एंड मोटिवेट यू? ठीक है, इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोटिवेटेड टॉपिक है कि नहीं? इफ आंसर इज यस, दैट मीन्स दिस टॉपिक हैज अ फुलफिलमेंट. विल द रिसर्च टॉपिक हेल्प टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ योर फ्यूचर एस्पायरेशंस? क्या ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके फ्यूचर गोल्स को भी एड्रेस करता हो? इफ आंसर इज यस, देन योर टॉपिक हैज दिस करेक्टरिस्टिक्स. सो आपको ऐसा टॉपिक चूज करने की जरूरत है which has appropriateness feature, capability, and fulfillment. These are 3 characteristics which your topic must have. The next one, generating and refining research topic ideas. This is very important slide. This slide gave us some techniques. There are a range of techniques which are used to generate a research idea and then refine it. Our course book has 2 types of techniques. One is rational thinking, and second one is creative thinking. Rational thinking is a conventional technique which is used by various researchers all the time, day by day, informally. And creative thinking is more professional technique, which some creative researcher use to generate a topic. So 2 तरह की टेक्निक्स हैं, दोनों यूज होती हैं. किस पर्पस के लिए? रिसर्च टॉपिक जनरेट करने के लिए. थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रैशनल थिंकिंग टेक्निक्स. इन रैशनल थिंकिंग, you examine yourself. First of all, you need to dig out what are the strengths lying in you, what interests you have. Basically, so you need to lay down, you need to dig out कि आपके strengths और interest क्या है. If you are interested in particular area of the business studies, तो आपको वो area define करने की जरूरत है. Second, examining academic staff research interest. अगर आपको आइडिया चाहिए, तो आपके जो एकेडमिक स्टाफ हैं, उनके रिसर्च इंटरेस्ट देखें. ठीक है. जब आप कहीं फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, किसी प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि उस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट को देखना चाहिए. आपने जब किसी सुपरवाइजर को चूज करना है, तो उस सुपरवाइजर की सीवी या उसकी रिसर्च प्रोफाइल है, उसको देखें. एंड देन यू विल फाइंड आउट वेरियस रिसर्च इंटरेस्ट इन विच दैट सुपरवाइजर, योर टीचर, योर ट्यूटर इज इंटरेस्टेड इन. तो वहाँ से भी आपको टॉपिक मिलेंगे. डिस्कशन
with colleagues, friends, and universities. You can dig out, you can generate various topics with the discussion with your colleagues, friends, and university tutors. Discuss with your friends, discuss with your fellows, discuss with your university tutors. Okay, you are the student of business, you are the student of accounting finance, you are the student of fला degree program. So my interest is this. तो आपका टीचर आपको गाइड करेगा कि आप किस एरिया पे रिसर्च कर लें. Looking at past project titles, go and visit your department. वहां पे देखें जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो चुके हैं, उन प्रोजेक्ट्स के टाइटल्स देखें. उन टाइटल्स को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट वेरियस रिसर्च टॉपिक्स. लाइब्रेरी चले जाएं, वहां पे थीसिस पड़े होते हैं, प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं. ब्राउज दोज प्रोजेक्ट्स, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे. सर्चिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है, पब्लिश्ड लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, उनको डिग आउट करें कि आपके एरिया से रिलेटेड क्या पब्लिश हो रहा है, उसको स्टडी करें. यू विल फाइंड वेरियस टॉपिक्स. Sixth one is scanning the media. You are engaged with the media, the print and social media. Read newspapers, read news. News will give you various topics, various avenues for the research. So these are 6 rational thinking techniques. By using them, you can find out your search topic. इनको यूज करें और अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो फाइंड आउट कर लें. इन्हीं टेक्निक्स को क्रिएटिव थिंकिंग में थोड़ा फॉर्मली जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है. क्रिएटिव थिंकिंग, फॉर एग्जांपल, कीपिंग अ नोटबुक ऑफ योर आइडियाज. व्हाटएवर द आइडिया ऑफ रिसर्च यू हैव, उसको लिख लें, जहन में ना रखें, उसको किसी डायरी में ज़रूर ले, ब्लैक एंड वाइट कर लें. राइट द आइडियाज, whatever the ideas you have in your mind, in your research डायरी. तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, you will have multiple ideas, because किस वक्त आइडिया आ जाए ये नहीं पता. Second, exploring personal preferences using past projects. Lay down your personal preferences. आपके जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है, जिस एरिया पे हैं उनको एक्सप्लोर करें और फिर उनको मैच करें ये पास्ट जो प्रोजेक्ट्स आपके सीनियर कर चुके हैं. ठीक है. विजिट योर डिपार्टमेंट, विजिट योर लाइब्रेरी, विजिट ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड try to match your personal preferences, your personal characteristics with the past projects. ठीक है, कि आप जिस एरिया पर रिसर्च करना चाह रहे हैं उस एरिया के प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें. You will find out various topics. Exploring relevance to business using the literature. Again वही बात आ गई. Literature means the published material available in the offline and online areas, in the form of articles, in the form of books, in the form of reports. तो ये जो जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उनके अगर आप सिर्फ टाइटल ही देख लेना, ठीक है, तो आपको बेशुमार टॉपिक्स मिलेंगे. बुक्स के जो टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं उसको अगर आप देख लें तो यू विल फाइंड आउट वेरियस टॉपिक्स. रिपोर्ट्स जो हैं उनको पढ़ें, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, यू विल फाइंड आउट वेरियस टॉपिक्स. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज रेलेवेंस ट्रीज. रेलेवेंस ट्री, ट्राई टू create a relevance trees. Try to create a mind mapping from broad to a specific concept. Broad, start from a broad concept that you are a student of business, and then try to make it a specific topic. Narrow down. Okay, business है जी, तो business में बड़े areas हैं, ठीक है, जहाँ पे टॉप काम किया जा सकता है. बिजनेस में यू हैव मैनेजमेंट साइंस,
you have finance area, human resource, marketing, supply chain. These are the subtopics. अगर आप फाइनेंस में जाते हैं तो फाइनेंस में भी बेशुमार एरियाज हैं जी। बिजनेस फाइनेंस में जाना है, इंटरनेशनल फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में, एचआर में है तो एचआर के बेशुमार फंक्शंस हैं, आपने किस फंक्शन पे रिसर्च करनी है। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ ट्री। ठीक है, माइंड मैपिंग ट्री जो बनता है उसको आप क्रिएट करके तो अपना टॉपिक अचीव कर सकते हैं, बड़े टॉपिक जनरेट कर सकते हैं जी। फिफ्थ वन इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसको भी आप यूज कर सकते हैं टू जनरेट योर टॉपिक। व्हाट इज brainstorming? Next slide will explain what is brainstorming. In brainstorming, basically, you first of all define problem. आप अपने 4-5 दोस्तों को इकट्ठे करते हैं, ठीक है, और उनके सामने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, अपने एरिया को डिफाइन करते हैं, अपने आइडियाज को डिफाइन करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करते हो. सो यू बेसिकली डिफाइन द एरिया बिफोर एन इनफॉर्मल ग्रुप. ठीक है, कैफे में बैठे हो तो आप अपना इंटरेस्ट जो है वो उनको बताते हैं, और वो क्या करते हैं, आस्किंग फॉर सजेशंस. सो यू आस्क देम फॉर द सजेशंस. ठीक है, वेरियस फीडबैक आपको मिलते हैं, आप उनके फीडबैक को क्या करते हैं, यू रिकॉर्ड देयर फीडबैक. ठीक है, वट एवर द फीडबैक दे गेव यू, यू रिकॉर्ड इट, यू राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक. तो जब आप उनके फीडबैक को लिखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो आपको काफ़ी एवेन्यूज मिलते हैं. किसी का फीडबैक जो है वो समझ लीजिए कि यूजलेस नहीं होता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है. ठीक है, ऑल सजेशंस मस्ट बी वेलकम एंड रिकॉर्डेड. जितनी सजेशंस भी आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, they all must be recorded and welcome in a positive way. Reviewing suggestions, you will seek to explore what is meant by each as you review these. ये हर एक ने जो आपको सजेशन दी है, हंसते हुए या सीरियसली और इन सीरियसली, जितनी भी सजेशंस आपके पास आई हैं, यू रिव्यू दो सजेशंस. उनको रिव्यू करें, और रिव्यू करने के साथ साथ आप देखें कि उसका कहने का मतलब क्या है. ठीक है जी, और रिव्यू करने के साथ साथ उन सजेशंस को एनालाइज करें. ठीक है, कंपेयर करें. राइट, आफ्टर कंपैरिजन यू विल फाइंड आउट लिस्ट ऑफ आइडियाज. वो जो लिस्ट ऑफ आइडियाज हैं, ठीक है, उनको लिस्ट डाउन करें और डिसाइड करें कि आपका अप्रोप्रिएट टॉपिक क्या हो सकता है. सो विद दिस एक्सरसाइज यू कैन फाइंड अ टॉपिक, brainstorming. So this will help you. Next is refining research topic ideas. Ideas तो आपको मिल गए, you have find out ideas, right? So far we have discussed these techniques. Rational thinking, which provide us the ways in which we can find out various ideas. Research topics. Creative thinking. These are techniques which are used to generate the ideas. So by using these techniques, you can find out various research topics. तो ये अभी हमने डिस्कस किया. जब आपको आइडिया मिल जाए तो फिर उसको रिफाइन करना है. रिफाइन करने के लिए भी टेक्निक्स मौजूद हैं. डेल्फाई टेक्निक है, ठीक है. दिस टेक्निक इज सिमिलर टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग.
ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रा थोड़ी सी इनफॉर्मल समझ लें, वे में भी हो सकती है, राइट। चार दोस्तों को इकट्ठे करें, उनको प्रॉब्लम बताएं, वो उस पर सजेशंस बताएं, सजेशंस को आप रिकॉर्ड करें। आफ्टर रिकॉर्डिंग सजेशंस यू list down those suggestions, you review those suggestions. After reviewing the suggestions, you analyze the suggestions, and then you choose one topic, one idea from the list of the ideas. डेल्फाई टेक्निक भी इसी तरह से ही है, लेकिन डेल्फाई टेक्निक जो है वो ज़्यादा फॉर्मल, ज़्यादा प्रोफेशनल है और रिपीटेडली होने वाली है, ठीक है। इसमें आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डू रिसर्च इन एचआर, तो आप एचआर के 3-4 टीचर्स को लेते हैं, ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं टाइम की, एंड दे गिव यू टाइम। फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, सर आई वांट टू डू रिसर्च इन एचआर, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड करें, सुजेस्ट करें। So those experts will listen you, and after listening your suggestion, they will give their suggestions. They will give their suggestions. You record those suggestions, and then you review them. You analyze the experts' suggestions, and then you try to find out a topic. आप इस एक्टिविटी को बार बार करते हैं, ठीक है। एक हफ्ते बाद दोबारा से मीटिंग करते हैं, and then you try to dig out new suggestions. फिर है, अगर आपने अपना टॉपिक रिफाइन करना है तो यू नीड टू कंडक्ट अ प्रेलिमिनरी इंक्वायरी, प्रेलिमिनरी रिसर्च करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। प्रेलिमिनरी रिसर्च का मतलब है इंट्रोडक्टरी रिसर्च, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन उसके बारे में लें। अगर आपको 3-4 टॉपिक्स मिल गए हैं और वो अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करने हैं, तो ट्राई टू get some introductory information and then discusses it with your supervisor, with your tutors. Next technique is the integrating ideas, classifying each research idea first into its area. Classify, आप अपने रिसर्च एरिया को क्लासिफाई करें into its area, then its field, उसका फील्ड क्या है, एंड देन फाइनली प्रिसाइजली इसको रिलेट करें अपने इंटरेस्ट के साथ, उसका प्राइस प्रिसाइज जो एस्पेक्ट है उसको देखें, ठीक है। ट्राई टू इंटीग्रेट, सो यू कनेक्ट द वेरियस आइडियाज उसको रिफाइन करने के लिए, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट से शुरू हो जाएं और इस इंटरेस्ट के साथ देखें कि आपने फाइनेंस का एरिया चूज किया है, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है। फाइनेंस में यू हैव वेरियस एरियाज जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जो आइडियाज़ आपको मिले हैं उन आइडियाज़ को फिर आप फाइनेंस के एरिया पे अप्लाई करें, राइट। आपको अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया अच्छी लगती है फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको आप डिग आउट करें, ठीक है, और फिर उनको अपने इंटरेस्ट के साथ रिलेट करें। इस तरह से यू कैन रिफाइन योर टॉपिक। बास का तो आपका सुपरवाइजर या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, याद रखिए वहाँ पे भी आपको जो है वो रिसर्च टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है। आप अगर सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम दे दिया जाता है, जी ये बिजनेस की सेल जो है ये कम हो रही है, इस पे ज़रा आप अपनी रिपोर्ट पेश करें कि क्यों कम हो रही है। आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, यू नीड टू डू दी रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो फिर आप उसके वेरियस एवेन्यूज को फाइंड आउट करते हैं और उस पर एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो पेश करते हैं। तो बास का आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका मैनेजर जो है वो टॉपिक दे देता है। सुपरवाइजर को बास का आप कह देते हैं कि सर मुझे तो कोई टॉपिक नहीं मिला, यू प्लीज हेल्प मी एंड असाइन मी अ टॉपिक। तो जब आपका सुपरवाइजर आपको टॉपिक असाइन करता है तो वो मुश्किल भी हो सकता है, वो आसान भी हो सकता है, याद रखिए।
So these are techniques in which you can refine your research topics. ठीक है जी, यहाँ तक we have studied so far how to generate research ideas to find a research topic, and then uh, how to refine research ideas, उनको कैसे refine कर सकते हैं. So ये कुछ techniques लिखी हुई थी. रिसर्च प्रपोजल सर जी, का. जी. सर इनफ है कि नहीं? जी बताइए. सर इनफ है मैंने कहा। इनफ है. टाइम क्या होगा? ओके जी, रिसर्च आइडियाज तक कोई किसी ने कुछ पूछना हो? एनीवन? खैर, चलें लास्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल हैव अटेंडेंस. इफ यू फॉलो द मेंशन्ड डिस्कस टेक्निक्स. जी हसनात, आपने क्या कहना? सर लास्ट क्लास में आपने रिसर्च की दो टाइप्स बताई थी, एक बेसिक और एक अप्लाइड। तो सर वो एक जगह मैंने देखा है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की भी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, तो क्या वो सेम है या इसमें कोई अलग डिफरेंस है कुछ उनमें? जी बहुत शुक्रिया, आपने ये क्वेश्चन पूछा. दिस इज द स्लाइड विच आई डिस्कस इन लास्ट क्लास. डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. ठीक है. सो याद रखिए, बेसिक रिसर्च इज बेसिकली द एक्सपेंशन ऑफ योर करंट नॉलेज. अगर आप अपने करंट नॉलेज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, आप कोई क्लास एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर कंडक्टिंग अ बेसिक रिसर्च. ठीक है. अगर आप किसी बिजनेस प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहे हैं, ऐसी रिसर्च जिससे कोई पॉलिसी बननी है, जिससे कोई फ्रेमवर्क बनना है और वो आगे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होना है, तो इट मींस यू आर कंडक्टिंग एन अप्लाइड रिसर्च. ठीक हो गया. हमने इस पूरे सब्जेक्ट में अप्लाइड रिसर्च सीखनी है. एक बात है. अब आपने कहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च. ठीक है. ये रिसर्च की दो फील्ड्स हैं, टाइप्स हैं. इन टाइप्स को आप जब हम रिसर्च डिज़ाइन जो है वो डिफाइन करते हैं, तो रिसर्च डिज़ाइन में हमने देखना होता है कि जो रिसर्च टॉपिक हमने चूज किया है, जिस पे हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू कलेक्ट अ क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है. मसलन ये पूरी स्लाइड जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, मैंने कलेक्ट की है और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है और आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक है. ये पूरी प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी है, ये सारी क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें मैं वर्ड्स के साथ खेल रहा हूँ. आई एम प्लेइंग विद वर्ड्स. बट क्वांटिटेटिव रिसर्च प्ले विद नंबर्स. ठीक है. नंबर्स के साथ खेलती है. इसमें एनालिसिस होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गए, इसमें मीन मीडियन मोड, ये टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर अप्लाइड. तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च बन जाती है. क्लियर हुई बात? यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी. हमारे पास 3 मिनट हैं, तो अटेंडेंस लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. अगर क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अटेंडेंस के लिए.
काइंडली रीज्वाइन द क्लास फॉर अटेंडेंस। उसी लिंक को यूज करके रीज्वाइन कर